So we will continue our studies on the book of Malachi. और हम मलाकी की किताब पर जो हमारा अध्ययन है उसे जारी रखेंगे। As you all might know, we went through the first 5 verses of Malachi chapter 1 last Sunday. और जैसा कि आप सभी जान सकते हैं कि हमने पिछले हफ्ते मलाकी पहले अध्याय पर अपना अध्ययन किया। The first 5 verses. प्रारंभ के 5 पदों पर। And my intention today is to take you all through from verse 6 to verse 14 this evening. और मेरा जो उद्देश्य होगा आज का वो ये होगा कि मैं आपको पद 6 से लेकर पद 14 तक आपको लेकर चलूं। I'm going to read these verses for you in English. और मैं इसे आपके लिए अंग्रेजी में पढ़ूंगा। And then our brother Vijay will read those verses in Hindi. और भाई विजय इसे आपके लिए हिंदी में पढ़ेंगे। And then I will pray a brief prayer for God's help. और परमेश्वर की सहायता के लिए हम एक संक्षिप्त प्रार्थना करेंगे। And then we'll see what the Lord has to say to us this evening. और परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहते हैं उसे सुनने का प्रयास करेंगे। So Malachi chapter 1 from verse 6 to verse 14. तो मलाकी की किताब पहला अध्याय पद 6 से लेकर पद 14 तक। A son honoreth his father, and a servant his master. If then I be a father, where is mine honor? And if I be a master, where is my fear? Saith the Lord of hosts unto you, O priests that despise my name. And ye say, wherein have we despised thy name? Ye offer polluted bread upon mine altar, and ye say, wherein have we polluted thee? In that ye say, the table of the Lord is contemptible. And if ye offer the blind for sacrifice, is it not evil? And if ye offer the lame and sick, is it not evil? Offer it now unto thy governor. Will he be pleased with thee, or accept thy person? Saith the Lord of hosts. And now I pray you, beseech God that he will be gracious unto us. This hath been by your means. Will he regard your persons? Said the Lord of hosts. Who is there even among you that would shut the doors for naught? Neither do we kindle fire on mine altar for naught. I have no pleasure in you, said the Lord of hosts. Neither will I accept an offering at your hand. For from the rising of the sun even unto the going down of the same my name shall be great among the Gentiles. And in every place incense shall be offered unto my name. And a pure offering for my name shall be great among the heathen, saith the Lord of hosts. But ye have profaned it, in that ye say the table of the Lord is polluted, and the fruit thereof, even his meat, is contemptible. Ye said also, behold, what a weariness is it, and ye have snuffed at it, said the Lord of hosts. And ye brought that which was torn, and the lame, and the sick. Thus ye brought an offering. Should I accept this of your hand? Saith the Lord. But cursed be the deceiver, which hath in his flock a male, avoweth, and sacrificeth unto the Lord a corrupt thing. For I am a great king, saith the Lord of hosts, and my name is dreadful among the heathen. मलाकी की किताब पहला अध्याय 6 से लेकर 14 तक। पुत्र पिता का और दास स्वामी का आदर करता है। यदि मैं पिता हूँ तो मेरा आदर कहाँ है, और यदि मैं स्वामी हूँ तो मेरा भय मानना कहाँ? सेनाओं का यहोवा तुम याजकों से भी जो मेरे नाम का अपमान करते हो यही बात पूछता है। परंतु तुम पूछते हो, हमने किस बात में तेरे नाम का अपमान किया है? तुम मेरी वेदी पर अशुद्ध भोजन चढ़ाते हो, तो भी तुम पूछते हो, हम किस बात में तुझे अशुद्ध ठहराते हैं? इस बात में कि तुम कहते हो यहोवा की मेज तुच्छ है। जब तुम अंधे पशु को बलि करने के लिए समीप ले आते हो तो क्या यह बुरा नहीं? जब तुम लंगड़े या रोगी पशु को ले आते हो तो क्या यह बुरा नहीं? अपने हाकिम के पास ऐसी भेंट ले जाओ, क्या वह तुमसे प्रसन्न होगा या तुम पर अनुग्रह करेगा? सेनाओं के यहोवा का यही वचन है,
अब मैं तुमसे कहता हूँ, ईश्वर से प्रार्थना करो कि हम लोगों पर अनुग्रह करे। यह तुम्हारे हाथ से हुआ है, तब क्या तुम समझते हो कि परमेश्वर तुम में से किसी का पक्ष करेगा? सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। भला होता कि तुम में से कोई मंदिर के किवाड़ों को बंद करता, कि तुम मेरी वेदी पर व्यर्थ आग जलाने ना पाते। सेनाओं के यहोवा का यह वचन है, मैं तुमसे कदापि प्रसन्न नहीं हूँ और ना तुम्हारे हाथ से भेंट ग्रहण करूँगा, क्योंकि उदयाचल से लेकर अस्ताचल तक जाति जाति में मेरा नाम महान है, और हर कहीं मेरे नाम पर धूप और शुद्ध भेंट चढ़ाई जाती है, क्योंकि अन्य जातियों में मेरा नाम महान है। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। परंतु तुम लोग उसको यह कहकर अपवित्र ठहराते हो कि यहोवा की मेज अशुद्ध है, और जो भोजन वस्तु उस पर से मिलती है वह भी तुच्छ है। फिर तुम यह भी कहते हो, यह कैसा बड़ा उपद्रव है। सेनाओं के यहोवा का यह वचन है, तुमने उस भोजन वस्तु के प्रति नाक भौं सिकोड़ी और अत्याचार से प्राप्त किए हुए और लंगड़े और रोगी पशु की भेंट ले आते हो। क्या मैं ऐसी भेंट तुम्हारे हाथ से ग्रहण करूं? यहोवा का यही वचन है। 14 जिस छली के झुंड में नर पशु हो, परंतु वह मन्नत मानकर परमेश्वर को वर्जित पशु चढ़ाए, वह शापित है। मैं तो महाराजा हूँ और मेरा नाम जाति जाति में भय योग्य है। यहोवा, सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। आमीन। Come, let us bow our heads before God and pray for His help. परमेश्वर के सम्मुख अपने सिरों को झुकाए और परमेश्वर की सहायता के लिए प्रार्थना करें। Our Father, teach us, Lord, that we know not. Lord, things that we cannot see right now, help us to see. Things that we cannot hear right now, Lord, unblock our ears and help us, Lord, to hear them. And what we are not this evening, make us for thy Son's sake. In Jesus' name, amen. Amen. My dear brothers and sisters, if you remember, the title of my last week's message was The Burden of the Lord. और प्रिय भाइयों और बहनों, यदि आपको स्मरण होगा कि मेरे पिछले जो संदेश था उसका क्या शीर्षक था, तो आप पाएंगे कि वो था परमेश्वर का भार। And I mentioned to you all that I would like to take you all through all the chapters of Malachi just to give you a brief introduction of the book. और मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको मलाकी की किताब से लेकर चलूँगा ताकि मैं आपको उसका परिचय दे सकूं। So during the introduction, I mentioned to you all that Malachi was exposing 6 sins of the church that time. You could say the temple worship at that moment. और मैंने आपको बताया कि मलाकी उनके सामने 6 पापों को उजागर करता है जो कि मंदिर से संबंधित वे कर रहे थे। And I gave you very brief introduction of all those 6 sins in the last week. और पिछले हफ्ते मैंने उन 6 पापों का संक्षिप्त विवरण आपके सामने प्रस्तुत किया। What I'm going to do tonight is I'm going to explain the first sin in a bit of in a detailed manner. Sorry. और आज जो मैं करने वाला हूँ वो ये है कि मैं उस पहले पाप को विस्तार से आपके सम्मुख रखना चाहूँगा। My dear brothers and sisters, the title of today's message is Despising God's Name. प्रिय भाइयों और बहनों, आज के संदेश का जो शीर्षक है वो ये है, आराधना में परमेश्वर के नाम का तिरस्कार। Beloved, I was reading a book very recently and it said something that I do not agree with. और प्रिय भाइयों और बहनों, मैं एक किताब पढ़ रहा था और वो कुछ बातें ऐसी कहता है जिससे मैं सहमत नहीं हूँ। That book said we are living in what many would call a great era, a great time of the church. और वो किताब कुछ इस प्रकार से कहता है कि हम एक ऐसे समय में रह रहे हैं जो कि एक महान समय काल है। Now, before I go ahead and explain to you what the first sin is, I would like to mention to you that I don't believe that we are actually living in a time when it can be called the greatest era of the church. और हमारे इस पहले पाप को समझने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि मैं क्यों ऐसा कह रहा हूँ कि हम किसी महान समय काल पे नहीं रह रहे। Yes, I agree that never before have we had
large congregations and large churches. और ये तो ज़रूर है कि इससे पहले हमारे पास बड़ी संख्या में कोई कलीसियाएं और बड़े समूह नहीं थे. You know, we have more impressive buildings these days. और आज हमारे समय में बड़े ही शानदार भवन पाए जाते हैं. As far as worship is concerned, is all orchestrated, all managed well. और जहाँ तक आराधना की बात है, हम देखते हैं कि ऑर्केस्ट्रा से सजा हुआ और बहुत अच्छे रीति से प्रबंध किया हुआ आराधना किया जाता है. And you would find many of people talking about global reach. और बहुत से लोग जगत के छोर तक पहुंचने की बात कहते हैं. And even here in India, we are seeing great things. और भारत में भी हम विभिन्न बड़ी बड़ी चीज़ों को देख पाते हैं. People talk about growing ministries. और लोग सेवकाई में बढ़ने की बात करते हैं. Number of conferences has increased. और बड़ी बड़ी सभाएं हो रही हैं. Social media platforms have increased, so social media outreach has increased. क्योंकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स बढ़ चुके हैं, इसलिए सोशल मीडिया के माध्यम से भी लोग लोगों तक पहुंच रहे हैं. Churches are multiplying. कलीसियाएं बढ़ रही हैं. By every visible measure, it appears that the church appears very powerful. और जिस प्रकार से हम देख पाते हैं कि कलीसिया बड़ी सामर्थ्य दिखाई दे रही है आज के समय. And yet, और फिर भी there is a terrifying reality beneath it all. और फिर भी हम देख पाते हैं कि एक खतरनाक, एक भयावह जो वास्तविकता है वो हमारे सामने है. And every time I think of it, it grieves my heart. और जितनी बार मैं इस विषय में सोचता हूँ, ये मेरे हृदय को द्रवित कर देता है. We have been so active outwardly. और हम देखते हैं कि हम बाहरी तौर पर बहुत सक्रिय पाए जाते हैं. But are we powerful inwardly? परंतु क्या हम आंतरिक रूप से भी सामर्थी हैं? That is my question for Yeah. each one of us today. और आज जितने लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, उन सभी से मेरा ये सवाल है. You know, as churches today, we know how to organize meetings. और आज की कलीसियाओं में हम देखते हैं कि हम जानते हैं कि कैसे सभाओं को आयोजित किया जाए. We know how to conduct services. और हम जानते हैं कि कैसे सभाएं और सर्विस कंडक्ट किया जाए. We know how to run ministries. और हम जानते हैं कि सेवकाई को कैसे चलाना है. But we have failed in one thing. परंतु हम एक चीज में विफल हो जाते हैं. And to me, that matters the most. और मेरे लिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण है. I believe, and I'm talking about India at the moment, और मैं वर्तमान समय में भारत के विषय में बात कर रहा हूँ, particularly Chhattisgarh. और विशेष रूप से छत्तीसगढ़. My dear brothers and sisters, we have failed to attract the presence of God. और प्रिय भाई और बहनों, हम इस बात में विफल हैं कि हम परमेश्वर की उपस्थिति को अपनी ओर नहीं खींच पाते. Let me make this very real. मुझे वास्तव में इसे समझने. We are more than capable of gathering hundreds of people for a Sunday meeting. और हम संडे की सभाओं में बहुत से सैकड़ों लोगों को जमा करने में सक्षम हैं. But I ask this question to myself and to those. परंतु मैं ये प्रश्न अपने आप से और आप लोगों से पूछना चाहूँगा. How many of us come truly expecting to meet God? और हम में से कितने लोग आज वास्तव में परमेश्वर से मिलने के लिए आए हैं? We can all sing loudly. हम सभी जोर से गा सकते हैं. But how many of us really sing with trembling hearts? परंतु हम में से कितने लोग थरथराते हुए हृदय के साथ गाते हैं? And we can preach eloquently. और हम बड़ी ही चतुराई के साथ प्रचार कर सकते हैं. But how many of us leave the worship place deeply convicted of our sins? परंतु हम में से कितने लोग इस आराधना को अपने हृदय से महसूस करते हुए आराधना करते हैं? Let me bring it closer. मैं आपको और निकट ले जाना So चाहूंगा. in our context, again, I'm talking about India. और हमारे संदर्भ में मैं आपसे भारत के विषय में बात कर रहा हूँ. People will be more than happy to travel kilometers for a special meeting. और हमारे यहाँ लोग सैकड़ों मीलों तक यात्रा करने से अधिक प्रसन्न हैं. We can sit for hours together in a program. और हम किसी कार्यक्रम में घंटों बैठ सकते हैं. And we would also be eagerly waiting to
attend conferences. और हम ऐसी विभिन्न सभाओं में जाने और उसे अटेंड करने के लिए बड़ी उत्सुकता से उनका इंतजार करते हैं। But in the ordinary Lord's Day worship, परंतु एक साधारण प्रभु के दिन की सभा में there is distraction. यहाँ व्यवधान है, There is casualness. यहाँ हम चीजों को बहुत सरल समझ सरल बैठते रीति से हैं. लेते हैं We are half-hearted, divided hearts. और हमारा हृदय बटा हुआ है। Some come late, कुछ देरी से आते हैं some come very tired, और कुछ बड़े थके हुए से आते हैं, and some come with phones in their hands. और हमें से कुछ अपने हाथों में फोन लेकर आते हैं। And yet we say, और फिर भी हम कहते हैं we have come to worship God. कि हम परमेश्वर की आराधना करने के लिए आए हैं। My dear brothers and sisters, think about this a little. प्रिय भाइयों और बहनों, इस विषय में सोचिए जरा। Would you and I behave this way? क्या हमने इस प्रकार से व्यवहार किया है? नहीं, अगर क्या हम इस प्रकार से व्यवहार करेंगे, if we truly believed God was present among us. यदि हम विश्वास करते हैं वास्तव में ये कि परमेश्वर हमारे बीच में उपस्थित है, And let me say this very carefully. और मैं इसे बड़ी सावधानी पूर्वक आपसे कहना चाहूंगा, This is not some weakness. और ये कोई कमजोरी नहीं है, This is not some excuse that you can give to any pastor. और ये कोई केवल कोई बहाना नहीं है कि आप किसी पासवान को कोई बहाना दें। It's not an excuse that children can give to their parents. और ये कोई ऐसा बहाना नहीं है कि एक बच्चा अपने माता पिता को इस प्रकार का बहाना दे। My dear brothers and sisters, this is sin. मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, ये पाप है, Because at the root of it, क्योंकि इसकी जड़ में we have reduced God. हमने परमेश्वर को छोटा आंका है। The God of Scriptures says this, and we know that it is mentioned in Isaiah. और परमेश्वर के वचन में, और हम जानते हैं कि इसे यशायाह में कहा गया है, Angels cry, holy, holy, holy. परमेश्वर के स्वर्गदूत इस प्रकार से पुकारते हैं कि पवित्र पवित्र पवित्र। I question myself and I question my congregation this evening. मैं अपने आप को और अपनी मंडली को यह प्रश्न पूछना आज शाम चाहता हूं, What was your prayer this evening before you came to this worship service? जब आप इस आराधना सभा में आए उससे पहले आपकी क्या प्रार्थना थी? Did you come with an expectation in your heart that you're going to meet God? क्या आप इस भावना के साथ यहाँ आए हैं? क्या यह इस उम्मीद के साथ आप यहाँ आए हैं कि आप परमेश्वर से मिलेंगे? My dear brothers and sisters, we have made him manageable. We have made him so predictable these days. प्रिय भाई और बहनों, हमने केवल प्रबंधकारी रूप से परमेश्वर को बना लिया, सीमित कर दिया है। Unfortunately, in many places today, worship has become a performance. और आज के समय में प्रिय भाई और बहनों, आराधना केवल एक प्रदर्शन बनकर रह गया है। It has become a presentation. यह एक प्रदर्शन जैसा बनकर रह गया है। And it's become so routine these days. और यह केवल दिनचर्या बनकर रह गया है। And we can plan everything so tightly. और हम चीजों को बड़े ही कठोर रीति से उन्हें व्यवस्थित करने का प्रयास करते हैं। That there is no room for God to intervene. और इस प्रकार से हम इन चीजों को करते हैं कि परमेश्वर भी उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते। There is no silence. यहाँ कोई शांति नहीं है। There is no brokenness. यहाँ कोई टूटा हुआ हृदय नहीं है। And there is no holy fear these days. और आज के समय में कोई पवित्र भय नहीं पाया जाता। It grieves my heart. और यह मुझे शोकित कर देता है। It should grieve your heart as well. और इसे आपके हृदय को भी शोकित करना My चाहिए। dear brothers and sisters, whom do we worship? मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम किसकी आराधना कर रहे हैं? It is the holy God of heaven and earth. ये स्वर्ग का परमेश्वर है, पवित्र परमेश्वर है। It's a frightening reality, I'm sorry. और ये हमें भयभीत कर देने वाली सच्चाई है। You and I might say, oh, our church has sound doctrine. और हम कह सकते हैं कि हमारी जो कलीसिया है वहाँ स्थिर और मजबूत शिक्षा प्रदान की जाती है। You and I could say we have correct theology. और हमें से कुछ कह सकते हैं कि हम सच्ची शिक्षा प्रदान करते हैं। But I ask, परंतु मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, is God in our midst?
क्या परमेश्वर हमारे बीच में है? Is he still are we still in the presence of God? क्या हम अभी भी परमेश्वर की उपस्थिति में पाए जाते हैं? And God speaks to us this evening through the book of Malachi. और परमेश्वर आज मलाकी की किताब से हमसे बातचीत करता है। And listen to this very carefully, dear brethren and sisters. और प्रिय भाई और बहनों, इसे बड़ी सावधानी और ध्यान के साथ सुने। We heard this last week that he was not talking to unbelievers. और पिछले हफ्ते हमने सुना कि मलाकी जो है वो किसी अविश्वासी व्यक्ति से बात नहीं कर He रहा, was talking to Israel. वह इस्राएलियों से बात कर रहा है। And today he is speaking to church people. और आज वो कलीसिया के लोगों से बातचीत कर रहा He है, is speaking to worshippers. वो आराधकों से बातें कर रहा He है, is speaking to religious people. वो धार्मिक लोगों से बातें कर रहा है, People like us. हमारे जैसे लोग। Frightening reality. ये एक भयभीत कर देने वाला सच्चाई है। And what does he say? और वो क्या कहता है? Malachi chapter 1 verse 6. मलाकी अध्याय 1 पद 6। I'll break into that portion where it says, "O priests और that despise my name." और मैं इस बात पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा जहां पर लिखा हुआ है कि तुम याजकों से भी जो मेरे नाम का अपमान करते हो। He doesn't say you've forgotten my name. वो यहाँ पर ये नहीं कह रहा कि तुमने मेरे नाम को भुला दिया He's है। not saying you neglect me. वो यहाँ पर ये नहीं कह रहा है कि तुमने मेरे नाम को नकार दिया है। He says you despise my name. वो कहता है कि तुमने मेरे नाम का तिरस्कार किया है। And when I read the Hindi word, it just said अपमान. और जो हिंदी शब्द कहता है वो केवल अपमान कहता So है। I thought I should go back and check the word in Hebrew. और मुझे वापस जाकर इस शब्द के इब्रानी अर्थ को समझने की आवश्यकता You know, है। I know some of you would say, "Come on, Pastor, we are not Bible college students." और आप में से कुछ ये कह सकते हैं कि पास्टर, हम बाइबल कॉलेज के विद्यार्थी नहीं हैं। No, that's a bad excuse. नहीं, ये एक गलत बहाना है। Do you know why? क्या आप जानते हैं क्यों? Because this church has brought Bible college to you. क्योंकि इस कलीसिया ने आपके निकट बाइबल कॉलेज ले आया है। We, the pastors, the elders, the deacons, we are Bible colleges for you. हम जो पास्टर्स और डीकन्स और प्राचीन हैं, हम आपके बाइबल कॉलेज We हैं। should be teaching all this. और हमें आवश्यकता है कि हम इन चीजों को आपको सिखाएं। Okay? So, Hebrew class now, please. आइए इब्रानी के कक्षा में चलते हैं। The word is baza. जो शब्द है वो है बाजा। Despise, baza. तिरस्कार का अर्थ है बाजा। Do you know what that means? क्या आप जानते हैं कि इसका क्या अर्थ है? To treat something as absolutely worthless. इसका अर्थ है किसी चीज को इस प्रकार से ले लेना कि वो बिल्कुल व्यर्थ हो जाए। To treat God as ordinary and common. परमेश्वर को इस प्रकार से उसके साथ व्यवहार करना कि परमेश्वर केवल साधारण व्यक्ति कोई है। To devalue what is supremely valuable. और किसी ऐसी चीज को जिसका अत्यंत महत्व है, उसके महत्व को महत्वहीन समझने लगना। It says, verse 12, "But ye have profaned it, in that ye say the table of the Lord is polluted, and the fruit thereof, even his meat, is contemptible. He said also, Behold, what a weariness is it, and ye have snuffed at it, said the Lord of hosts, and he brought that which was torn, and lame, and sick, and thus he brought an offering. Should I accept this of your hand?" And it says, "But cursed be the deceiver, which hath in his flock a male, and voweth, and sacrificeth unto the Lord a corrupt thing." और पद 12 से आगे इस प्रकार से कहता है, परंतु तुम लोग उसको यह कह कर अपवित्र ठहराते हो कि यहोवा की मेज अशुद्ध है, और जो भोजन वस्तु उस पर से मिलती है वह भी तुच्छ है। फिर तुम यह भी कहते हो कि यह कैसा बड़ा उपद्रव है। सेनाओं के यहोवा का यह वचन है, तुमने उस भोजन वस्तु के प्रति नाक भौं सिकोड़ी और अत्याचार से प्राप्त किए हुए और लंगड़े और रोगी पशु की भेंट ले आते हो। क्या मैं ऐसी भेंट तुम्हारे हाथ से ग्रहण करूं? यहोवा का यही वचन है, जिस छली के झुंड में नर पशु हो, परंतु वह मन्नत मानकर परमेश्वर को वर्जित पशु चढ़ाए, वह शापित है। मैं तो महाराजा हूँ और मेरा नाम जाति जाति में भययोग्य है।
सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। When the Lord said, O priest that despise my name, और जब यहाँ पर कहता है कि हे याजकों, तुम याजकों से भी जो मेरे नाम का अपमान करते हो, the people then were shocked to hear that. और जो लोग वहां पर थे वो अचंभित हो गए And they responded और by वे- saying, और वो इस प्रकार से प्रतिक्रिया देते हैं कहकर, and by the way, God is saying this, He says, and ye say, wherein have we despised thy name? और परमेश्वर यहाँ पर इस प्रकार से कह रहा है, परंतु तुम पूछते हो हमने किस बात में तेरे नाम का अपमान किया है। You see, those people were not able to see that they were despising God's name. और देखिए यहाँ पर लोग इस बात को देख भी नहीं पा रहे हैं कि वे परमेश्वर का तिरस्कार कर रहे They हैं। were so active, वे अत्यंत सक्रिय but हैं, they were very empty on the inside. परंतु वे आंतरिक रूप से बिल्कुल खाली हैं। But they were, they were religious, but they were blind. हालांकि वो धार्मिक हैं, परंतु वे फिर भी अंधे हैं। And this is the danger for us in Chhattisgarh. और यही आज छत्तीसगढ़ में हमारे लिए खतरा है प्रियो। We assume that because we gather every Sunday, हम ये सोच लेते हैं कि क्योंकि हम हर रविवार को कलीसिया में इकट्ठे होते and we हैं hold the Bible in our hands, और हम अपने हाथों में बाइबल थामे रहते हैं we sit through the sermon time, और हम संदेश के समय बैठे रहते हैं that everything is fine. और इसलिए सब चीजें सही हैं। But Malachi teaches us something else. परंतु मलाकी हमें कुछ और बातें बताता है He says you can attend every meeting, और वो कहता है कि तुम हर एक सभाओं को अटेंड कर सकते you हो, can sing every song, तुम हर एक गीत को गा सकते हो and you can listen to every sermon, और तुम हर एक संदेश को सुन सकते हो। even if it's a long sermon like Dipankar delivers. और ये वैसा भी संदेश हो सकता है जो भाई दीपांकर प्रचार करते हैं, And still और फिर भी despise God in your worship. तुम अपनी आराधनाओं में परमेश्वर के नाम को तिरस्कार कर सकते हो। Didn't we just hear what God said? Ye offer polluted bread upon mine altar. और यही चीज हमने यहाँ पर पढ़ा कि तुम मेरे निकट अशुद्ध भोजन वस्तु लाते हो। So in simple terms, तो साधारण शब्दों में He says, you give me तुम मुझे देते हो, what you would never give to others. तुम मुझे वो चीज देते हो जो तुम दूसरों को नहीं देते। And then he says, let me ask you some questions. और फिर वो कहता है कि मुझे तुमसे कुछ प्रश्न पूछने दो। If a government officer came, और यदि कोई सरकारी अफसर तुम्हारे निकट आता है, would you come late? क्या तुम देरी से आओगे? If a respected guest came, यदि कोई आदरणीय अतिथि आता है, would you sit casually? क्या तुम साधारण रूप से बैठ सकते हो? And if your employer called you, और यदि आपका नौकरी देने वाला व्यक्ति आपको बुलाता है, would you pay half attention? क्या तुम उस पर आधा अधूरा ध्यान दोगे? But when it is God, परंतु जब परमेश्वर की बात आती we है, give leftovers. हम बचा खुचा परमेश्वर को देते हैं। We are always distracted. हमेशा हमारा ध्यान इधर उधर रहता है। We talk about our health. हम अपने स्वास्थ्य के विषय में बात करते We हैं। talk about our tiredness. हम अपनी थकान के विषय में बात Some करते of हैं। us talk about our pockets. हम में से कुछ अपने जेब के विषय में बात करते हैं Some of us talk about the weather outside. और हम में से कुछ बाहर के मौसम के विषय में बात करते हैं। We have 100 excuses. हमारे पास सैकड़ों बहाने हैं। They're not excuses. ये बहाने नहीं हैं। It's a sign of divided heart. ये एक ऐसे हृदय का चिन्ह है जो कि बट चुका है। Sign that you're distracted from the service of God. ये इस बात का प्रमाण है, इस बात का चिन्ह है कि आपका ध्यान आराधना से हट गया है। So the question this evening is not this. तो आज की शाम जो प्रश्न है वो ये है। Question is not, are we growing? प्रश्न ये नहीं है कि क्या हम बढ़ रहे हैं, Are we spending enough money on missions? क्या हम परमेश्वर की मिशन के लिए आवश्यक धन लगा रहे हैं, Are we busybodies or not? क्या हम व्यस्त हैं या नहीं। The question is, प्रश्न ये है, are we honoring God? क्या हम परमेश्वर को आदर दे रहे हैं। Are we despising His name in worship? क्या हम परमेश्वर के नाम का तिरस्कार कर रहे हैं अपनी आराधनाओं में। And that is the burden of this message. और यही इस संदेश का भार है।
I will read Malachi 1 verse 6 once again. और मैं मलाकी 1:6 फिर से पढ़ना चाहूँगा। It says, "A son honoreth his father, and a servant his master. If then I be a father, where is mine honor? And if I be a master, where is my fear? Saith the Lord of hosts unto you, O priests that despise my name." और इस प्रकार से ये कहता है 6वां पद, पुत्र पिता का और दास स्वामी का आदर करता है। यदि मैं पिता हूँ तो मेरा आदर कहाँ है, और यदि मैं स्वामी हूँ तो मेरा भय मानना कहाँ। सेनाओं का यहोवा तुम याजकों से भी जो मेरे नाम का अपमान करते हो यही बात पूछता है, परंतु तुम पूछते हो हमने किस बात में तेरे नाम का अपमान किया है। Do you get to see the central sin here? क्या आप यहाँ पर पाए जाने वाले मुख्य पाप को देख पा रहे हैं? Yeah, I'll not be able to explain everything that I have in my notes today, of course. मैं ज़रूर उन सारी बातों को प्रचार नहीं कर पाऊंगा जिन बातों को मैंने अपने नोट्स पर लिखा है। But this is the best part of expository preaching. You can always come next week and explain. और जो व्याख्यात्मक प्रचार है इसका यही एक फायदा है कि आप उन चीज़ों को अगले हफ्ते आकर बोल सकते You हैं। see, God does not begin with the behavior. परमेश्वर व्यवहार के साथ आरंभ नहीं करता बातों He को, begins with your heart. वह आपके हृदय से आरंभ करता He है। says, "Ye despise my name." वो कहता है कि तुम मेरे नाम का अपमान करते हो। So this is not merely careless speech यह केवल कोई लापरवाह वचन नहीं है, or some sort of language that does not have reverence, or in a shorter way, irreverent language. और यह केवल कोई अनादरपूर्ण भाषा ही नहीं है, This is deeper. यह उससे कहीं अधिक गहरा है। I was reading a book on this, और मैं इस पर एक किताब पढ़ रहा था, and I would like to quote a few things from that book. और मैं उनमें से कुछ उद्धरणों को आपके सामने रखना It's चाहूंगा। better the author says this directly to you. और ये वो बातें हैं जो लेखक आपसे सीधे बात करना चाहता है। Malachi मलाकी directs his messages, मलाकी अपने संदेश को निर्देशित करता है, especially to the priests, विशेष रूप से याजकों के लिए, who instead of living exemplary lives, meaning life of examples, जो कि एक उदाहरण के रूप में जिनको जीना चाहिए, they were guilty of breaking the very law they were supposed to obey and teach. और वे एक ऐसे व्यवस्था को तोड़ रहे थे उन्हें मानना चाहिए और उनका उदाहरण बनना चाहिए। The way they were serving God जिस प्रकार से उन्हें परमेश्वर की सेवा करनी चाहिए was a disgrace to his name. और वहां पर वे परमेश्वर के नाम को तुच्छ जान रहे हैं। And then he goes on to say 8 times in the book और वो इस प्रकार से कहता है, किताब में 8 बार you find the phrase my name. आप इस वाक्यांश को पढ़ पाएंगे जहां पर यह कहता है कि मेरा नाम। Malachi chapter 1 मलाकी अध्याय 1 verse 6, पद 6, verse 11, पद 11, verse 14, पद 14, chapter 2 अध्याय 2, verse 2, पद 2, verse 5, पद 5, then chapter 3 अध्याय 3, verse 16, पद 16, and then chapter 4 और उसके पश्चात अध्याय 4, verse 2, पद 2, referring of course to God's character and reputation. When he says, when you despise my name, we are despising God's character and reputation. और जब वो कहता है कि तुम मेरे नाम का अनादर कर रहे हो तो यह परमेश्वर के चरित्र और उनकी मान का अनादर है। My dear brothers and sisters, the priests who were supposed to honor God's name were bringing disgrace to his name. और याजकों को जिन्हें परमेश्वर के नाम का आदर करना चाहिए वही याजक उनके नाम का अपमान कर रहे हैं। And they were doing that blatantly before the Lord's people. और वे लोग परमेश्वर के लोगों के सामने इन चीजों को कर रहे हैं। And they were allowing people to bring defiled sacrifices on the altar. और वे लोगों को प्रोत्साहित भी कर रहे हैं कि वे इस प्रकार के अशुद्ध जो बलिदान है वो परमेश्वर के सामने लेकर आएं।
How does it relate to me? ये कैसे आज मुझसे संबंध रखता है? How does it relate to anybody here? और ये कैसे आपसे जो यहाँ पर उपस्थित है संबंधित है? Especially who are preparing for the ministry विशेष रूप से उनके लिए जो सेवकाई की तैयारी कर रहे and हैं those who are already in ministry. और वे लोग जो पहले से ही सेवकाई में हैं। If you and I यदि मैं और आप start permitting the people यदि हम लोगों को अनुमति देना चालू कर दें to bring God less than your best, और यदि हम लोगों को अनुमति देना चालू कर दें कि वे परमेश्वर के सामने ऐसी चीज़ों को लेकर आए जो परमेश्वर के योग्य नहीं हैं, हमारा सर्वोत्तम ना देकर, मीनिंग अगर मैं, अर्थ मेरा ये है कि अगर मैं एक पासबान होने के नाते, परमेश्वर का सेवक होने के नाते कलीसिया के लोगों को इस बात की अनुमति दे देता हूं कि तुम अपना सर्वोत्तम और सर्वश्रेष्ठ इस सेवा में, सभा में नहीं भी लाओगे तो चल जाएगा, ये वही अपराध है जो मलाकी के समय में लोग किया करते थे। सॉरी, I as God's servant, if I start permitting the people in this congregation to bring God less than their best, then I'm committing the same mistake, the same sin that the people during Malachi's time did. और यदि मैं लोगों को परमेश्वर का सेवक होने के नाते लोगों को अनुमति देना चालू कर दूं कि वे परमेश्वर के निकट ऐसी चीज़ों को लेकर आए जो मेरे स्वयं के लिए बेस्ट नहीं है, तो मैं वही पाप कर रहा हूँ, वही अपराध कर रहा हूँ जो मलाकी के समय में याजक कर रहे थे। You know, our offering to God is an indication of what is in our heart. और परमेश्वर के निकट हम जो भेंट लेकर आते हैं वो इस बात का संकेत है कि हमारे हृदय में वास्तव में क्या है। He says God is using a very simple argument here. He says, I'm your father, honor your father. परमेश्वर एक साधारण सा तर्क यहाँ पर दे रहे हैं कि मैं तुम्हारा पिता हूँ, अपने पिता का आदर करो। You know, you treat your masters with respect. तुम अपने स्वामी को आदर के साथ व्यवहार करते But हो, when it comes to me, you treat me lightly. और जब मेरी बात आती है तुम मुझे साधारण रूप से मेरे साथ व्यवहार करते हो। And you know, much of our time these days, okay, I'll apply this to our current context. और मैं इसे आज के समय में हम पर लागू करना चाहूँगा। We have quite a few respectable God's servants here. और हमारे पास परमेश्वर के आदरणीय सेवकगण यहाँ पर उपस्थित हैं। And I have attended a few Christian meetings with you all. और मैं आप सभी के साथ कुछ मसीही सभाओं में गया हूँ। You know, majority of the times we are talking about just one thing. और अधिकांश समयों में हम केवल एक ही विषय पर बात करते हैं, Persecution. सताव। Just count the number of meetings that we have had over the last 1 year. और उन सभाओं की गिनती करें जो हमने पिछले एक वर्ष में उपस्थित जिसमें हम रहे हैं। Count the money, all the amount that we have squandered over all these meetings. और कितना धन हमने इन सभाओं में खर्च किया है, लगाया है, इसकी गणना हम करें। My dear brothers and sisters, as a person who is not that experienced as some of us are, एक व्यक्ति जो उतना अनुभवी नहीं है जिनमें से हमारे बीच में जितने लोग उपस्थित हैं उनमें से ज़्यादा अनुभवी लोग, my little knowledge says the problem is not persecution. मेरी छोटी सी बुद्धि इस बात को समझ पाती है कि समस्या सताव नहीं है। To me and for my church, the problem should be how do we deal with casual Christianity? आज हमारे समय में जो समस्या है वो ये है कि हम ऐसे लोगों से जो कैजुअली साधारण रूप में चीज़ों को लेते हैं, आराधना को लेते हैं, उनके साथ कैसे व्यवहार करें। We become such a people हम एक ऐसे लोग बन गए हैं that we would never openly deny God, जो ऐसे ही खुले रूप से परमेश्वर का इनकार नहीं करते, but subtly we diminish Him. परंतु बड़ी धूर्तता से हम परमेश्वर को छोटा आंकते हैं। Our offerings, as I said, our offerings to God are an indication of what is in our hearts.
जैसा कि मैंने आपसे कहा कि हमारा भेंट परमेश्वर के लिए हम जो लेकर आते हैं वो ये बताता है कि हमारे हृदय में क्या है। You know, if our concept of God is so low, और यदि परमेश्वर के विषय में हमारी जो अवधारणा है वो इतनी छोटी है that we start to think that he's pleased with cheap offerings, और हम ये सोचना आरंभ कर देते हैं कि परमेश्वर ऐसी छोटी और नीचता भरी जो बलिदान है उससे प्रसन्न हो जाएंगे। we think that he is happy with our half-hearted worship, और हम ये सोचना आरंभ कर देते हैं कि परमेश्वर हमारी जो बटा हुआ हृदय है उससे आनंदित होगा। I dare say we do not know the God of the Bible. और मैं ये कहने का साहस आपके सम्मुख करूंगा कि हम परमेश्वर के वचन के परमेश्वर को नहीं जानते हैं। You know, a God who encourages us to do less than our best, एक ऐसा परमेश्वर जो हमसे ये कहता है कि ठीक है तुम अपना सर्वोत्तम मुझे ना दो, तो फिर ये एक ऐसा भगवान है जिसे हमें पूजने की आवश्यकता नहीं। That's my point. A God who encourages us to do less than our best is God who isn't worthy of worship. That's my argument. और एक ऐसा परमेश्वर जो हमसे कहता है कि तुम अपना सर्वोत्तम मुझे ना दो, हमें ऐसे ईश्वर की आराधना करने की आवश्यकता नहीं है। That is the reason why I said, you know, we have reduced him. और यही वो कारण है कि हमने परमेश्वर को छोटा आंक लिया है। We have packaged him. हमने उनको सीमित कर दिया है। And then we have made him into some manageable God. We'll just do things and just get away with it. और हमने परमेश्वर को नियंत्रित करने योग्य बना दिया। हम उनके लिए कुछ करते हैं और वहां से हट जाते हैं। And in doing so, और ऐसा करने के द्वारा we have despised his name. हम परमेश्वर के नाम का तिरस्कार करते We हैं। have polluted worship. हमने परमेश्वर की आराधना को अशुद्ध कर दिया है। And God is exposing that. और परमेश्वर इसे उजागर करते हैं। My dear brothers and sisters, especially Tridestone Church, don't think that you are untouched by this. ट्राइडस्टोन चर्च से मैं कहना चाहूंगा कि आप ये ना सोचे कि आप इससे अछूते रह जाएंगे। No, you are not. नहीं, आप नहीं हैं ऐसे। Whatever church you come from. आप किसी भी चर्च से क्यों ना आए हो। My dear brothers and sisters, our hearts are such these days प्रिय भाई और बहनों, हमारे हृदय इस प्रकार से हो गए हैं आज के दिनों में that we've become seeker sensitive. कि हम लोगों का ध्यान खींचना चाहते हैं अपनी ओर। We go after goats. हम बकरियों की ओर भागते हैं। We have abandoned the sheep. हमने भेड़ों को तज दिया है। We want to ask this question, what attracts people into our meetings? और मैं ये पूछना चाहूंगा कि ऐसा क्या चीज है जो लोगों को हमारी सभाओं में आकर्षित करता है। नहीं, मैंने ये कहा हम ये पूछने लगे हैं कि आज मनुष्य को किस तरीके से आकर्षित करके मीटिंग में ला सके, जबकि हमें यह पूछना चाहिए कि परमेश्वर को क्या भाता है, कौन सी ऐसी चीज है जिससे परमेश्वर को महिमा मिलती है। Instead of asking what glorifies God, we have started asking this foolish question, what attracts people? और ये पूछने के बजाय कि परमेश्वर को क्या भाता है, हम ये पूछने लगे हैं कि लोगों को कैसे आकर्षित किया जाए। And then we leave the Bible. और फिर हम बाइबल को छोड़ देते हैं। And we look at the people. और हम लोगों को देखने लगते हैं। And then we start asking them, what do you want from us? और हम उनसे पूछने लगते हैं, तुम हमसे क्या चाहते हो? How can I attract you into the church? और मैं तुम्हें कैसे कलीसिया में आकर्षित कर सकता हूँ? You know what we are doing? क्या आप जानते हैं कि हम क्या कर रहे हैं? We are giving blind sacrifices. हम अंधे बलिदान परमेश्वर के सम्मुख चढ़ा रहे We हैं। are giving lame sacrifices. हम लंगड़े बलिदान परमेश्वर के सम्मुख We चढ़ा are रहे हैं। giving deceased offerings. हम अशुद्ध बलिदान चढ़ा रहे हैं। I'll tell you why. मैं आपको बताना चाहूंगा क्यों। If you and I go to an unconverted man and ask, hey, what do you want? और यदि आप ऐसे अपरिवर्तित व्यक्ति के पास जाओ और उसे पूछे कि तुम क्या चाहते हो, What is he going to say? वो आपसे क्या कहेगा? Where your treasure is, there will be your heart. जहां तुम्हारा धन है वहीं तुम्हारा हृदय भी होगा। Right? So he would say,
since he's unconverted, he is going to say things that do not have any connection with the Bible. क्योंकि वो एक अपरिवर्तित व्यक्ति है, वो कहेगा कि मेरा बाइबल से कोई संबंध नहीं है। नहीं, वो ऐसा चीज कहेगा जिसका बाइबल के साथ कोई संबंध नहीं। वो ऐसे चीजें मांगेगा आपसे जिसका उद्धार के साथ कोई लेना देना नहीं, और हम उसी को हमारी मीटिंग्स में लेके आएंगे, बोलेंगे इन्हें लेके आओ, so that ताकि he will benefit. ताकि उसे लाभ मिले। There is no point in feeding goats. यहाँ पर बकरों को खिलाने से कोई मतलब नहीं। Feed the sheep. हमें भेड़ों को भोजन कराने की आवश्यकता है। And did I hear somebody ask me? Did I hear somebody ask me? क्या मैंने यहाँ किसी को बोलते हुए सुना? You know, sheep were sometimes goats. कि भेड़ कई बार बकरियां ही होती हैं। नहीं, कि भेड़े कभी बकरियां थी। अच्छा, थी। कई बार लोग बोल देते हैं भेड़े भेड़े ही होते हैं और बकरियां बकरियां ही होती हैं। बकरियां कभी भेड़ नहीं होते और भेड़ कभी बकरियां नहीं बनती। हमें बकरियों को खोजने नहीं जाना है, हमें भेड़ों को खोजने जाना है। मेरे प्रियो, दैट्स द फोर्स ऑफ टुडेज मैसेज। और यही आज के संदेश का जोर है। I've spoken, no, I have not spoken, but we both have spoken for almost 50 minutes. और हम दोनों ने करीबन 50 मिनट इस विषय पर बात किया है। I'll take 10 more minutes. मैं 10 मिनट और आपका लेना चाहूँगा। And then I'll conclude today's message. और आज के संदेश को हम फिर विराम देंगे। We'll come back next Sunday and do the rest of it. और हम अगले हफ्ते आएंगे, अगले रविवार को आएंगे और आगे के हिस्से को सुनेंगे। God wants perfect sacrifice from you. परमेश्वर एक सिद्ध बलिदान आपसे चाहते हैं। The question is, can you bring that? क्या आप वो परमेश्वर के निकट ला सकते Okay, हैं? how many of us will say, yes, we can bring? और हम में से कितने लोग हैं कि जो कहेंगे हाँ हम ला सकते हैं? Please raise your hand. कृपया अपने हाथों को उठाएं। Okay. The question is then, what is that perfect sacrifice that you're going to bring? फिर प्रश्न ये है कि वो कौन सा सिद्ध बलिदान है जो आप परमेश्वर के निकट लेकर आएंगे? My dear brothers and sisters, when I said God requires perfection, प्रिय भाई और बहनों, जब मैंने आपसे कहा कि परमेश्वर सिद्धता मांगता है, God requires excellence, परमेश्वर श्रेष्ठता मांगते हैं, God requires the best, परमेश्वर सबसे उत्तम की चाह रखते हैं, there is only one that actually can be categorized under all those words. केवल एक ही व्यक्ति है जिसे इस प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता In fact, let me put it this way, He is over all these words. है। मैं इस प्रकार से कहना चाहूँगा कि इन सारे शब्दों के ऊपर वो है, Christ, मसीह, the perfect Lamb of God. परमेश्वर का सिद्ध मेमना। My dear brothers and sisters, this is the good part now. प्रिय भाई और बहनों, ये सबसे अब अच्छा भाग है। You and I cannot bring for perfect sacrifices. मैं और आप परमेश्वर के निकट सिद्ध बलिदान नहीं ला सकते। My point wasn't to tell you that you can bring perfect sacrifices. मेरा बिंदु ये नहीं है कि मैं आपको बताऊं कि आप किसी प्रकार से सिद्ध बलिदान ला सकते हैं। My point is to make you turn to that perfect sacrifice that Christ has given. मेरा उद्देश्य ये है कि मैं आप लोगों का ध्यान उस सिद्ध मेमने की ओर आकर्षित करूं जो कि सिद्ध बलिदान है। Nobody in this room, as we know, is perfect and can bring perfect sacrifice. हमें से जितने लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, हम किसी प्रकार में हमें कोई सिद्धता नहीं और हम किसी प्रकार का सिद्ध बलिदान नहीं ला सकते। Some point or the other, we were all, or we are still like the priests in the Malachi days. और किसी भी प्रकार से हम देखें, हम मलाकी के जो याजक हैं उनके समान ही अपने आप को पाएंगे।
And the comfort is in this. परंतु सांत्वना इस बात में है, You and I believe in Christ. मैं और आप मसीह पर विश्वास रखते हैं, And that Christ is the perfect sacrifice. और वो मसीह पर सिद्ध बलिदान है। This evening, if you are convicted of your sin by whatever I said this evening, यदि आज के शाम जो कुछ मैंने आपसे कहा, यदि आप अपने पाप के प्रति आपको दोषबोध होता है, if you think that if you are fearful now and you're filled of awe, और यदि यह आपको भयभीत करता है और आप भय से भर गए हैं, that's good news. आपके लिए यहाँ शुभ समाचार है। Good news because the Spirit of God is working in you. I believe so. और ये शुभ समाचार इसलिए है क्योंकि मैं मानता हूं कि पवित्र आत्मा आपके हृदय में कार्य कर रहे हैं। Look to Christ. मसीह की ओर देखें। He is that perfect sacrifice, meaning He has given His total being to God for you and me. वो एक मसीह, एक सिद्ध बलिदान होने के नाते आपके और मेरे लिए उन्होंने अपना सर्वस्व दे दिया। He gave His perfect obedience. उन्होंने अपनी सिद्ध आज्ञाकारिता प्रभु के सामने अर्पित की। He gave His perfect worship. उन्होंने अपनी सिद्ध आराधना अर्पित की। He gave perfect sacrifice. उन्होंने सिद्ध बलिदान चढ़ाया। Where Israel failed, जहां इस्राएल विफल हो गया, Christ succeeded. मसीह वहां पर सफल हुए। And there is hope in that. और उस बात में आशा है। You know, all of our polluted worship, हमारी हर एक जो अशुद्ध आराधनाएं हैं, Christ has borne on His shoulders. मसीह ने उसे अपने कंधों पर उठा रखा। All the careless heart that I talked about, हर एक वो लापरवाह हृदय जिसके विषय में मैंने आपसे कहा, Christ has borne those heartaches on His shoulders. पर मसीह ने उन चीजों को अपने ऊपर उठा लिया। And He offered Himself as perfect worship to God on our behalf. और हमारे स्थान पर उन्होंने अपने आप को सिद्ध बलिदान के रूप में परमेश्वर के सम्मुख अर्पित किया। All you have to do आपको जो कुछ करना है is repent of your casual worship. वो ये है कि आप अपने साधारण बातों से, साधारण चीजों से पश्चाताप करें। Repent of your divided hearts. अपने बटे हुए हृदय से पश्चाताप करें And return to reverence. और आदर पूर्णता की ओर आएं Return to the holiness of Christ. और मसीह की पवित्रता की ओर आएं Return to His wholehearted devotion. और परमेश्वर की हृदय से जो आराधना उन्होंने की उसकी ओर लौटें। To the unbelieving friends, I say this. अपने अविश्वासी भाइयों से मैं कहना चाहूंगा, You cannot offer God acceptable worship आप परमेश्वर को ग्रहण योग्य आराधना नहीं दे सकते until you come through Christ. जब तक आप मसीह के द्वारा ना आए। Your works, आपके कार्य, your religion, आपका धर्म, they're all blemished sacrifices. सब कुछ दोषपूर्ण है। You need the Lamb of God. आपको परमेश्वर के मेमने की आवश्यकता है। So the question for Tristone should not be this: is the church growing? ट्राइस्टोन के लिए जो प्रश्न होना चाहिए वो ये नहीं होना चाहिए कि क्या कलीसिया की उन्नति हो रही है कि नहीं, या किसी भी कलीसिया के लिए नहीं होनी चाहिए। मेरे हिसाब से कलीसिया के लिए प्रश्न ये होना चाहिए कि क्या परमेश्वर को महिमा मिल रही है? Is God honored? That's the question that Tristone needs to ask. ट्राइस्टोन चर्च को जो प्रश्न पूछने की आवश्यकता है वो ये है कि क्या परमेश्वर को महिमा मिल रही है? Because what we do not want is a polished church, polished people. और हम ऐसे लोगों की आवश्यकता नहीं है जो बिल्कुल चमकाए हुए अच्छे लोग हैं, but powerless. बल्कि सामर्थ्यहीन लोग। What is the point in being active but you're still empty? आप सक्रिय हैं पर फिर भी आप खाली हैं। Let us fear God. आइए परमेश्वर का भय माने। Let us honor His name. आइए परमेश्वर के नाम को आदर दें। And let us worship in truth and spirit. और आइए सत्य में परमेश्वर की आराधना करें। And that can be done only through Christ. और यह केवल मसीह के द्वारा ही हो सकता God है। is not looking for better programs.
परमेश्वर अच्छे से अच्छे कार्यक्रम के विषय में नहीं सोच रहे। God is looking for a people परमेश्वर ऐसे लोगों को खोजते हैं who will no longer despise His name, जो परमेश्वर के नाम का तिरस्कार नहीं करते, but tremble before Him. बल्कि उनके सामने थरथराते हैं। Amen. आमीन। I request Pastor Rajesh Gadia to pray in light of what has just been preached. मैं पास्टर राजेश गाड़िया से निवेदन करूंगा कि जो कुछ प्रचार किया गया है उसके अनुसार वो प्रार्थना करें। And before he prays, we'll stop the recording.